जब मैंने कंप्लीट कर लिया तो मतलब एक दो जो जिस कैलकुलेशंस के थे वो बाद में करने थे, वो भी विद इन 60 मिनट्स और सारा कंप्लीट हो गया था मेरा। क्या तो बात है, क्या वो बात। वो करके जब मैंने दोबारा रिवाइज किया तो वो पता नहीं नींद का था कि वो ओ उस माय टाइम गॉड। पे मैंने थोड़ा पैनिक किया कि मैंने एमसीक्यूज कुछ देख रही थी। तो वो जब मैंने फर्स्ट मार्क किए थे वो बिल्कुल लॉजिक के साथ और सही मार्क किए थे, और सेकंड जी। टाइम में मैंने एमसीक्यू। So hi everyone, once again I am back with one more success story. Today Mehla Tanveer is with me, who recently qualified her Oprah exam with elite expertise. She is a superwoman, I come to know that. Let us discuss with her. So hi Mehla, how are you? First of all, congratulations to you on passing your Oprah exam in the first attempt. How's your feelings right now? Hi, I'm good. Thank you for congratulating me. It was a good experience and a roller coaster journey. And it was very helpful for me because of elite expertise, and they helped me a lot during this Yeah. journey. Thank Yeah. you. So Mehlab, can you please introduce yourself from where you belong to? What is your educational background? And currently, what are you doing nowadays? Okay. My name is Mehlab Tanveer, and I completed my Form D degree from Bahauddin Zikriya University from Multan, and I went to Australia in November 2025. Yeah, Okay. because my friend lives there. So yeah, and there I pursue my dream of becoming pharmacist in Australia. Okay. Yeah. So So from November 2025, you are preparing for the Oprah. So when did you started your preparation for the Oprah exam? And uh, uh, from where you come to know about the elite expertise and this Oprah preparation course? yeah, I come to know from social media, and Okay. one of my husband's friend told him about your app and all the about ma'am and sir, and Okay. then he did it with me. So I also familiar with the app through the social media. So we decided to enroll in the session. So yeah, and it was a roller coaster journey. I decided in December to pursue, but Okay. time I was pregnant, and suddenly there was some complications occurred during my pregnancy because of my, you can say, because of flight or because of, I don't know, it's all of a sudden. So yeah, so I have to stop my preparation for some time, and Okay. in February we delivered the baby through C-section, and after that I started preparing my preparation for the exam. So, after delivering baby in Feb 2026, you started your Yeah, preparation for the Oprah exam. So, with yeah. the little one, you how did you manage the things? It was difficult. ये बहुत मुश्किल Yeah, था बिकॉज ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, सारे हर चीज़ का ही okay, पहला एक्सपीरियंस था। और मेरा yeah, है स्टडीज में 3 years का। तो okay, I did in 2023, and yeah, then yeah, there was a break. So I was very much confused at first कि मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, yeah, क्योंकि कंसेप्ट्स भी होते हैं वो इतने फिर याद नहीं रहते। तो yeah. फिर मैं लेक्चर्स से स्टार्ट किया था। पहले मैं लेती रही थी थोड़े बहुत लेक्चर्स इन दिसंबर जनवरी, लेकिन वो मुझे स्टॉप करने पड़े थे क्योंकि कंसिस्टेंट नहीं थे मीन्स दिसंबर हाँ, जनवरी से आप, बट फैब ऑनवर्ड्स आफ्टर डिलीवरिंग द बेबी आपने हाँ, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर किया इसके लिए। या हाँ, तो वो मैंने लेक्चर्स लेने स्टार्ट किए थे। फिर एट द एंड जो था, जो लेक्चर्स मैम के थे और सर के थे, रिवीजन लेक्चर्स, वो बहुत हेल्पफुल थे और इम्पोर्टेंट थे, उनको स्टार्ट किया था। और रोज़ का मेरा एक टारगेट होता था कि ये इतना मैंने कंप्लीट करना है और वो मैं सुनना है। और मैं सारा दिन ऐसे ही गुजरता था कि लेक्चर्स ही सुनते रहना है। इवन के रात को भी जब
मेरी डॉटर उठती थी, वो उस टाइम पे भी मैंने साथ में वो लेक्चर लगाए होना, साथ में उसको देखना। तो ये इस तरह से मैंने सारी प्रिपरेशन की। सो एलीट एक्सपर्टीज ने आपको कैसे हेल्प किया इन पासिंग योर ओपरा एग्जाम? तो अपनी ओपरा एग्जाम की जर्नी एलीट एक्सपर्टीज के साथ कैसी रही, वो बताएंगे इट प्लीज? वाज वेरी वेरी मच हेल्पफुल। ये एक तो मेरे कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज हुए उनकी वजह से, और दूसरा कि आई वाज नॉट एट द पोजीशन कि मैं बुक्स खोलती और एक एक चीज़ को रिवाइज करती और वो सारे कुछ दोबारा से पढ़ती, वो मेरे से नहीं हो पा रहा था। और इतना टाइम भी नहीं था और कंसंट्रेशन भी नहीं थी, और मेरा ख्याल मेंटल हेल्थ भी वैसी नहीं होती वो बिल्कुल भी। आफ्टर डिलीवरिंग ए बेबी थोड़ा सा फर्क रहता है उस टाइम पे, वो कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो वो फिर मेरे लिए यही हेल्पफुल था कि मैं लेक्चर्स को सुनती रहती थी। तो वो जो रिवीजन लेक्चर्स थे और वो लेक्चर्स जो थे वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहे थे। तो मैम और सर के जितने भी थे वो उनका बताने का मेथड और सारी स्ट्रेटजीज वो बहुत हेल्पफुल रही। सो तनवीर बताएं कि जब आप रियल एग्जाम को फेस करने के लिए पियर्सन के ऑफिशियल सेंटर में गए, ओपरा का रियल एग्जाम आपके सामने है, तो जब आप एग्जाम सेंटर पर थे तो आप क्या फील कर रहे थे एट दैट पॉइंट ऑफ व्यू? I was confident. I was very much confident, but a night before exam was not good for me because my baby didn't sleep at all, and I didn't take a full sleep. और मैम और सर ने कहा था कि आप लोगों ने अपनी नींद पूरी करके जानी है, और मुझे ये था कि मैं सोऊं कैसे, ये मुझे सोने नहीं दे रही। वो आपके हाथ में नहीं था एक्चुअली। Yeah, I was very much panic. Like कि मुझे याद रहे मैं कुछ इस तरह से, मतलब मेरी नींद नहीं पूरी हुई तो मुझे कोई उसका टेस्ट पे इफेक्ट ना आए, और वो थोड़ा बहुत somehow आया था। लेकिन जब मैंने टेस्ट देखा था I was confident, और मैंने 60 मिनट्स में टेस्ट कर लिया था। तो 60 मिनट्स में सारा कंप्लीट कर लिया था। इवन कि मैंने दूसरी दफा भी सारा रिवाइज किया, और जब मैंने कंप्लीट कर लिया तो मतलब एक दो जो जिस तरह कैलकुलेशंस के थे वो बाद में करने थे, वो भी विद इन 60 मिनट्स और सारा कंप्लीट हो गया था मेरा। क्या बात है, क्या बात। वो करके जब मैंने दोबारा रिवाइज किया तो वो पता नहीं नींद का था कि वो उस टाइम पे मैंने थोड़ा पैनिक किया कि मैंने एमसीक्यूज कुछ देख रही थी, तो वो जब मैंने फर्स्ट मार्क किए थे वो बिल्कुल लॉजिक के साथ और सही मार्क किए थे, और सेकंड टाइम में मैंने उसके आंसर्स चेंज कर दिए, क्योंकि वो उस टाइम पे मुझे लगा पता नहीं मैंने बिल्कुल गलत कर दिया है, और आई डोंट नो कि वो बिल्कुल मैं एकदम से वो उस तरह से हो गई। तो फिर वो कुछ एमसीक्यूज ना मुझे हमेशा याद रहेंगे, क्योंकि वो जो पहले मार्क किए थे वो बिल्कुल सही थे और वो गलत। तो लेकिन शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा पास हो गया। तो क्या इन द मिडल लाइन थी रिजल्ट की, तो वही टॉप पे हो जाती अगर वो भी एमसीक्यूज में ना चेंज करती। इसीलिए सर और मैम एग्जाम से 2 दिन पहले सबको बोलते हैं कि आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है, सो दैट कि आप एग्जाम में पूरे अटेंटिव रहें और आप हर क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार पढ़ के उसका अच्छे से आंसर कर पाए। इसलिए नींद बहुत जरूरी है। देखिए हमारी बॉडी भी आराम मांगती है, अगर हम ना सोएंगे, ज्यादा पढ़ते रहेंगे तो वो हमें कहीं ना कहीं उसका बैड इफेक्ट हमारे रियल एग्जाम में बैठने के टाइम हमें दिखता है, हमें सुस्ती रहती है वहां पे, तो नींद जरूरी है। इसीलिए सर और मैम कहते हैं। पर आपका केस थोड़ा सा डिफरेंट था क्योंकि आप बेबी की वजह से नहीं सो पाए, और वो भी देखो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उससे भी भाग नहीं सकते। तो जी महिला, मुझे ये बताएं कि जब आपका ओपरा का रिजल्ट आया अभी 2 दिन पहले, अर्ली मॉर्निंग जब आपका रिजल्ट आया, तो जब आपने रिजल्ट देखा सबसे पहले किसके साथ शेयर किया और क्या आपकी फीलिंग्स थी उस टाइमिंग पे? उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे हमें ले जाएं और सिर्फ अपने शब्दों के साथ हमें बताएं कि आप उस टाइम क्या फील कर रहे थे। सबसे पहले तो मैंने शुक्र किया था अल्लाह का कि वो मेरा बिल्कुल पास हो गया, और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी। और फिर मैंने इसको अपने फैमिली में शेयर किया सबके साथ, क्योंकि यहाँ पे आई एम कंट्री इन माय होम टाउन पाकिस्तान, और वो यहाँ पे ज़रा वो उस टाइम फजर का टाइम था। सो उस टाइम पे सारे मतलब अपना उठ रहे थे, कुछ सो रहे थे,
तो सबको फिर वो मैसेज किया ग्रुप में, और फिर नमाज पढ़ी, अल्लाह का शुक्र अदा किया, एंड सबसे जरूरी था वो। ये बस ऐसे सेलिब्रेट किया इसको। तो तनवीर, अगर सपोज करो कि आप इस एग्जाम को दोबारा से देने जा रहे हो, तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आप इस बार नहीं करोगे? मींस मैं चाहता हूं कि आप फ्यूचर जो एस्पिरेंट्स हैं जो ओपरा एग्जाम देना चाहते हैं, कुछ लोग एजुकेशन के गैप की वजह से फियर करते हैं, हो सकता है कि हम इसको नहीं कर पाएंगे कि हमारा एजुकेशन गैप है। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो अपने एकेडमिक्स में स्टूडियस नहीं होते हैं, वो इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, उन्हें ये लगता है कि शायद ये डिफिकल्ट होता है, शायद हमसे नहीं हो पाएगा। तो कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आप दें कि जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं वो इंस्पायर हो सके उससे, और वो अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सके। एक तो अपने आप पे बिल्कुल कॉन्फिडेंट रखें, अपने पे बिलीव रखें कि हाँ मैं कर सकते हैं, चाहे जो भी सिचुएशन हो हम कर सकते हैं, तो फिर आप वो कर लेंगे। और अगर आपके साथ हेल्प हो, जैसे कि थी एलीट एक्सपर्टाइज की, तो फिर तो बहुत आसानी हो जाती है। और एक रोज का गोल रखें कि ये मैंने करना है, ये एक टारगेट है, इसको कंप्लीट करना है, इसको अचीव करना है, जैसे भी करके वो आपने वो करें, उसको कंप्लीट करें। और इस तरह रोज कंसिस्टेंसी, हर सक्सेसफुल काम कंसिस्टेंसी मांगते हैं, तो कंसिस्टेंसी होनी बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। फिर प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट प्रोफ्स जो हैं वो दें और लेक्चर्स सुने, उसके बाद वो मॉक्स दें, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये सारा कुछ बहुत हेल्पफुल रहेगा प्रिपरेशन के लिए। बेसिकली जितने ज्यादा मॉक्स देंगे वो उतनी ज्यादा आपकी प्रिपरेशन होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो महलाब तनवीर, कैन यू प्लीज से फ्यू वर्ड्स अबाउट आरिफ सर, हारिका मैम एंड एंटायर टीम, एलीट एक्सपर्टीज, बैकहैंड टीम, टेक्निकल टीम, एडमिन टीम, जिन्होंने आपको ओपरा एग्जाम प्रिपेयर कराने में हेल्प किया? हारिका मैम तो सुपर मैम है, उनके बारे में तो वाकई में उनको देख के एक बहुत इंस्पायरिंग जर्नी थी। उनको देखना कि वो जैसे जिस कंडीशन में उन्होंने पढ़ाया, और फिर बाद में भी उनका जो एनर्जी लेवल था वो था हमारे लिए, वो कर सकती हैं, तो वो हम भी थोड़ी बहुत कोशिश कर ही सकते हैं। तो और सर का बताने का, पढ़ाने का मेथड वो बहुत बहुत अच्छा है कि वो मतलब आपको जितना भी पुराना भूला हुआ होता है, जितना मर्जी गैप हो आपका, तो वो सारा कवर कर लेता है। वो उसकी टेंशन नहीं रहती कि ये इतने इयर्स का गैप है तो कंप्लीट नहीं होगा। तो वो सारे कंसेप्ट्स उसमें क्लियर हो जाते हैं, हर चीज़ कवर हो जाती है। और बाकी जो टीम की हेल्प रही है, एडमिन्स की हेल्प रही है, वो तो साथ साथ चलती रही है। हम लोगों ने काफ़ी तंग भी किया कि अब ऐप नहीं चल रही है, अब ये नहीं चल रहा, तो वो देखें, उन्होंने हर चीज़ को प्रॉपर टाइम पे सॉल्व किया। तो सारा एक जो टीम वर्क है वो बहुत हेल्पफुल रहा है। तो थैंक यू सो मच महलाब तनवीर। तो ये थी महलाब तनवीर, जिन्होंने अभी रिसेंटली अपना ओपरा का एग्जाम क्वालिफाई किया है। किसी पर्सनल इशू की वजह से ये कैमरे पर नहीं आ पा रही थी, बट ये अपने दिल की बात कहना चाहती थी, एलीट एक्सपर्टीज को थैंक्स पे करना चाहती थी, तो इन्होंने अपना इंटरव्यू दिया। आई होप कि आपको इनके व्यूज, इनकी सजेशंस पसंद आई होंगी। तो जल्दी मिलते हैं हम और ऐसी नई सक्सेस स्टोरीज के साथ। थैंक यू सो मच तनवीर for being with us. If you find this video useful, like this video. If you want to see more success story like this, subscribe our channel. Thank you so much.